So control walls actually, as you can see on the screen, that is a type of walls which are controlled remotely to maintain flow rate, level, pressure, and temperature directly or indirectly as per requirement. Means whatever your process requirement is there, you can give the set value, but how it is functioned, how the set value it is given. There are multiple amounts of things to work for a single control wall. There is not only a means generally what people understand about control wall is there is only a single wall with an actuator which we give the set value in the DCS, and that set value is it. But how it is functioned, like what other elements are there, that also we are going to learn here. What applications of control wall is there? Control wall can be used for controlling anything. You can, as we know that control wall is only used to control the flow, but with the help of controlling flow we can also control the temperature of the process. We can also control the level in the vessel. We can also control the pressure inside your reactor. So control wall is the most important thing. Where you need to place that control wall, it is also an important point. After when you have selected successfully that this control wall should be placed at this position, then afterward it comes that at which point you have to install that control wall, the CV calculations of control wall, characteristics of control wall. You need to understand every aspects before installing. Otherwise the problems of control wall can hinder your process also. Okay, so apart from this definition, I can also let you know that the control wall is not only a wall, it is a final controlling element. Okay, so control wall is a final controlling element through which a fluid passes. Okay, through which a fluid passes and which adjusts the size of flow passage as directed by a signal from a controller. So जो भी आपका कंट्रोलर है, ठीक है, आई विल यूज बोथ लैंग्वेज फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो वट एवर योर कंट्रोल वॉल इज देयर, दैट इज ओनली अ फाइनल कंट्रोल एलिमेंट. सो आपको वो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट का खाली वही काम है कि उसमें से आपका फ्लूइड कितना जाना चाहिए. लेट्स से सपोज आई विल एक्सप्लेन यू विथ एन एग्जांपल. अगर आपका एक रिएक्टर है with a jacket, okay, so you need to heat the process with the help of steam. The steam is at the temperature of 145 degrees Celsius, let's say. Okay, so the steam temperature is 145 degrees Celsius and you need to heat your reaction mass up to temperature of 90 डिग्री सेल्सियस. अब 90 डिग्री सेल्सियस तक आपको हीट करना है. आपके पास हीटिंग मीडिया स्टीम है. तो हाउ इट विल वर्क, एनी वन कैन एक्सप्लेन. जैकेट में आपका स्टीम जाएगा 145 डिग्री सेल्सियस का, 140 डिग्री सेल्सियस का. ठीक है, और आपका प्रोसेस टेम्परेचर आपको फ्रॉम एम्बियंट टू 90 डिग्री सेल्सियस लेके जाना है. तो हाउ द कंट्रोल वॉल विल प्ले इट्स रोल. There will be a temperature indicator which will be mounted on the equipment or the vessel, and according to the temperature, the steam this control wall will regulate its flow. Like the signal will be transferred from the TI to this control wall, and accordingly it will adjust the flow. Okay, that's great. So with this example you came to know that the control wall is the final control element. Okay, so in this it's a simple example. So your temperature indicator will be there with its transmitter installed on the reactor. If only temperature indicator is there, then it won't be able to send the signal to the your temperature control wall. If the transmitter is not there, then the temperature control wall will not work, because it is a final control element. For control wall to work, you need to give signals, you need to give the feed to the control wall to work it properly. Because working of the control wall, as you can see on the screen, that the controller present in the closed loop feedback system of the process sends signal to the final control element, the control wall, to instruct it how much to maintain the opening of the wall stem, so as the flow rate can be increased, decreased, or maintain at a steady state. Okay, so working is completely depend on how the signal is reached to the control wall. So various terminologies are also used
regarding functions and characteristics of control valves, like capacity, if you say. So capacity is what the rate of flow through a wall under stated conditions. Like in our example, the stated condition was steam at 140 to 145 degrees Celsius. So initially my process temperature is ambient. So in that case, my temperature transmitter will send its signal, that is ambient temperature, to the control valve, and based on that the opening percentage of control valve will be decided by its actuator. Okay, so let's say initially it is 100% open. So as the temperature of your process rises, like currently it's ambient, let's say after 30 minutes the temperature is reached up to, let's say, 55-60 degrees Celsius. So will the percentage opening be same as it was initially? No. No, Okay. no, the Yes. temperature will rise. So yes, as the temperature rises, the control valve opening will reduce. Okay, so what it will happen, it will hinder the flow, it will reduce the flow, it will obstruct the flow. So जो भी टेम्परेचर जैसे जैसे आपका राइज होगा, एज इट विल, अब हमने सेट पॉइंट दे रखा 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो जैसे ही वो 80-85, जो भी आपका डिफरेंस है, जैसे वो आपके सेट पॉइंट से जितना कम होता जाएगा, द कंट्रोल वॉल ओपनिंग उतना आपका कम होता जाएगा। इट एट द एंड इट विल बी ओनली 5%, 2%, 1% ओपनिंग आपकी रहेगी, ठीक है। तो दिस इज कैपेसिटी, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन control wall. Okay, after that, can you change the slide to show? Yeah, so you can see here कि यहाँ पे प्रेशर कंट्रोल वॉल का एक एग्जांपल दिया हुआ है। जो यहाँ पे मेरा एक डीपी फ्लो मेजरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक कंट्रोल वॉल है। सेम जो एग्जांपल हमने अभी टेम्परेचर कंट्रोल वॉल का लिया, कंट्रोल वॉल एक वाइड टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। कंट्रोल वॉल इज अ वाइड टर्मिनोलॉजी, बट इट इज, उसका जो नाम है कि आपको उसको क्या नाम देना है, इट completely depends on what it is controlling. Like in our first example, we control the temperature. So while preparation of PNID, while preparing a documentations, while preparing data sheet, we used to give it the name temperature control valve, which is because it is controlling the temperature. बहुत लोग इसमें गलती क्या करते हैं कि उसको फ्लो कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। वो बोलेंगे कि हम तो स्टीम का फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं, तो इट शुड बी अ फ्लो कंट्रोल वॉल। नो, बट वो सिग्नल उसको कहाँ से मिल रहा है टू कंट्रोल दैट दैट वेरिएबल यू आर कंट्रोलिंग। सो यू आर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर, सो इट इज अ टेम्परेचर कंट्रोल वॉल। भले ही वो फ्लो कंट्रोल कर रहा है, स्टिल इट इज योर टेम्परेचर कंट्रोल वॉल। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, मैं इस पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज वाइल प्रिपेरेशन ऑफ डेटा शीट, जब आप कंट्रोल वॉल का स्पेसिफिकेशंस देते हो, जब आप वेंडर के पास जाते हो कि आपको वो कंट्रोल वॉल चाहिए, ठीक है, तो वेंडर से जब आपको कंट्रोल वॉल मिलता है, तो वेंडर्स आपको एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछता है, आपको बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस उसको देने पड़ते हैं। व्हाट यू नीड टू कंट्रोल, फ्लूइड मीडिया क्या है, आपको कितने से कितने परसेंट ओपनिंग चाहिए, सीवी वैल्यू क्या रहेगी, एन नंबर ऑफ थिंग्स दे यूज टू आस्क। सो अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल के बदले फ्लो कंट्रोल देंगे, तो डिजाइन विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। सो इस बेसिस पे हम नाम देते हैं। अभी जो इमेज आपको दिख रहा है यहाँ पे भी कंट्रोल वॉल है, यहाँ पे भी फ्लो ही कंट्रोल होगा, बट ये हमारा क्या काम करेगा, जो भी लाइन में हमारा फ्लूइड जा रहा है, लेट से जो हमारा डीपी फ्लो मेजरमेंट है, ये क्या हमारा कर रहा है, डीपी फ्लो मेजरमेंट फ्लो मेजर कर रहा है मेरे लाइन का। अभी लेट से फ्लो हमारा बिफोर कंट्रोल वॉल इज 100 kg per hour, but I want to feed in my vessel with the flow rate of 50 kg per hour। तो 50 kg पर आवर मुझे फ्लो करना है। अब आपके कंट्रोल वॉल के पहले मेरा जो डीपी फ्लो मेजरमेंट है, दैट विल मेजर इट्स फ्लो एज 100 kg पर आवर। तो वो सिग्नल कंट्रोलर को जाएगा, उसका ट्रांसमीटर होगा, ट्रांसमीटर विल ट्रांसमिट द सिग्नल टू द कंट्रोल वॉल। अब कंट्रोल वॉल काम कैसे करता है, उसका स्टेम ऊपर नीचे कैसे होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इंस्ट्रूमेंट एयर का लाइन है, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट एयर क्या होता है, इट इज नथिंग बट कंप्रेस्ड एयर। ओके, इंस्ट्रूमेंट एयर इज नथिंग बट अ कंप्रेस्ड एयर, बट
उसको और फिल्टर किया होता है, उसमें से मॉइस्चर निकाले हुए होते हैं। कंप्रेस्ड एयर कंटेन्स मॉइस्चर, तो उसमें से मॉइस्चर निकालते हैं, तब जाके कंप्रेस्ड एयर इंस्ट्रूमेंट एयर को में कन्वर्ट होता है। और इंस्ट्रूमेंट एयर जो है वो जो कंट्रोल वॉल का डायफ्रागम होता है उसके ऊपर या नीचे दोनों तरफ से, जैसे आपको प्रेशर को बैलेंस करना है, फ्लो को बैलेंस करना है, स्प्रिंग को अपोज करना है, उस बेसिस पे आपका जो प्रेशर है वो एक्ट करता है अपोजिट फोर्स में। एंड द विद द हेल्प ऑफ इट्स एक्चुएटर एंड स्टेम, उसका स्टेम ऊपर और नीचे होता है। डिपेंडिंग ऑन दैट द वॉल का जो सीट होता है दैट चेंजेस इट्स पोजीशन, एंड दैट चेंज इन पोजीशन डिसाइड्स योर परसेंट ओपनिंग ऑफ द कंट्रोल वॉल। ठीक है, उसी से आपका परसेंट ओपनिंग ऑफ कंट्रोल वॉल डिसाइड होता है। So this is the complete working of the control wall, how it plays its role. Because अब कंट्रोल वॉल में क्या है, आपका फ्लो कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो थ्रू द वॉल एंड परसेंट रेटेड ट्रैवल ऑफ वॉल प्लग। बिकॉज जो लैटर है वो completely varied होता है, इट इज varied from 0 to 100%. दिस इज अ स्पेशल टर्म एंड शुड ऑलवेज बी designated एज either inherent flow characteristic और installed flow characteristic. जो भी आपका फ्लो कैरेक्टरिस्टिक कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं that are exhibited in laboratory conditions when constant pressure drop is maintained across the wall. ठीक है, मतलब जो प्रेशर ड्रॉप है, आप अभी आपके वॉल का भी एक स्पेसिफिक प्रेशर ड्रॉप होता है। ठीक है, बिकॉज इट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो। तो फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो लेट से आपका अगर 2 बार के प्रेशर से फ्लो आ रहा है, तो अब आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन, द प्रेशर विल रिड्यूस विद रिड्यूस इन फ्लो। सो जब कंट्रोल वॉल का टेस्टिंग होता है, लेट से अभी हमने सब कुछ दे दिया वेंडर को कि हमें ये कंट्रोल वॉल चाहिए, एक्सेस कैरेक्टरिस्टिक्स की चाहिए, वी वांट टू कंट्रोल द टेम्परेचर और वी वांट टू कंट्रोल द फ्लो, हमने सब कुछ उनको दे दिया। नाउ व्हाट, अब वो कंट्रोल वॉल आपको मिला कि नहीं, वो कंट्रोल वॉल इज एक्यूरेट फॉर यू और नॉट, इट इज एक्यूरेट और एफिशिएंट फॉर योर प्रोसेस और नॉट, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द टेस्टिंग मेथड्स। सो जो वेंडर्स है वो क्या करते हैं, वो अपने लैबोरेटरी में कंट्रोल वॉल जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए है, कंसिडरिंग द जीरो प्रेशर ड्रॉप, वो कीपिंग द प्रेशर ड्रॉप सेम at the inlet and outlet, they used to test the control wall. They are having their own equipments for testing. So वो एक specific जो भी फ्लूइड आप यूज कर रहे हो, आइदर सपोज अगर स्टीम का केस है तो इट इज अ 2 phase फ्लूइड, यू कैन से स्टीम कभी भी सिर्फ वेपर फॉर्म में नहीं होता है, इट इज ऑलवेज अ 2 phase फ्लो। बिकॉज स्टीम जब भी आपका फ्लो होता है तो थोड़ा बहुत पार्ट कंडेंसेट का भी हो जाता है। ठीक है, तो आइदर 2 phase फ्लूइड है तो 2 phase फ्लूइड के साथ वो ट्रायल्स लेते हैं, सिंगल फेज है, सिंगल फेज में लिक्विड है तो लिक्विड के साथ ट्रायल लेते हैं, वट एवर। इफ जनरल लिक्विड्स है लाइक वाटर आर देयर, सॉल्वेंट्स आर देयर, सो दे कैन टेक अ ट्रायल विद द हेल्प ऑफ दैट सॉल्वेंट। अगर कोई ऐसा मटेरियल होता है जो इजीली अवेलेबल नहीं है बट आपके प्रोसेस में आपको कंट्रोल वॉल यू नीड टू यूज फॉर दैट मटेरियल, फॉर फ्लोइंग दैट मटेरियल और कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ दैट मटेरियल, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उनको सैंपल में वो केमिकल भी देते हैं टू टेस्ट। ठीक है, सो उससे हमें पता चलेगा कि हमारा कंट्रोल वॉल अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।